Hello everyone. In today's class, we are going to continue with the searching technique. In the last class, we have done with the uninformed search technique. For today's class, we are going to see the informed search technique. According to your syllabus, you are having greedy best first search, A star, and RBFS, that is recursive best first search. It is there for practical RBFS. Okay. For theory purpose, you are having greedy best first search and A star search. So let's start informed search technique. When we talk about searching technique, and in that informed search technique, it is a technique basically where some information about the environment will be given to the agent. Okay. So informed search technique, obviously it is faster than uninformed search technique, and it will have better searching options as the agent will be knowing about the environment. Okay. In that, the first one is greedy best first search technique. Greedy best first search technique is an informed search technique that uses a heuristic function. Heuristic function use करता है to estimate how close a node is to the goal. Okay. Goal node से वो कितना close में है. It always expand the node that appears to be the closest to the goal. ओके जो नोड क्लोजेस्ट होगा वो उसको ही गोल नोड के जो पास में का नोड होगा उसको ही वो एक्सपांड करेगा विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड टू रीच दैट node. Okay, it will not think about the cost. And here the evaluation function is very simple, that is fn equal to hn, where fn is your estimation function, whereas hn is the heuristic estimate of the cost from node n to the goal node. Okay, so it only consider about the heuristic estimate. Okay, that's why it is called as a greedy best first search. It only checks the heuristic. Okay, heuristic value ही वो देखेगा. Okay, now it start from the initial node and calculate the heuristic value hn for the given state start node, and then insert the node into a priority queue. ये एक priority queue use करेगा, and it will remove the node with the smallest heuristic value. If it is the goal node, it will stop, otherwise it will expand further and insert its children into the priority queue. Okay, and it will repeat this process until it reaches the goal. Okay, and the queue becomes empty. Okay, and it is fast. इसके advantages क्या, ये fast है, easy to implement है, and it expand fewer nodes than BFS in many problem. And इस सर्चिंग टेक्निक से आप जो गोल नोड है वो आप इजीली फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं. वेर एज डिसएडवांटेजेस क्या है, ये गारंटी नहीं करता है कि इट विल गिव यू द शॉर्टेस्ट पाथ, and always it is not going to give you optimal solution also. Okay, so let's see one problem. Greedy best first search. In this given graph, we are about to apply greedy best first search. So greedy best first search बहुत ही simple काम करता है. It has a heuristic function that is fn equal to hn. Okay, सो ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ये केवल ये उसी को देखेगा. इट विल नॉट सी द गोल पाथ, दैट इज द GN वैल्यू, इट विल नॉट सी. ओके, ये केवल ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे ही काम करने वाला है. सो वी आर स्टार्टिंग एट A नोड. आवर स्टार्ट नोड इज A. देन वी कैन गो टू, वी हैव 3 पॉसिबिलिटी C, E and B. C has a value 329, whereas E has a value 253. Then B has a value 374. Now here, out of this, which value is the smallest one? Obviously this one. So it will select this, and further it will expand this. So from E we can go to G and F. If we are going to G, we have a possibility of 193, whereas if we go to F, we have 178 as the heuristic. And from at this level it has 2 possibility, and the best value is F, so it will select this, and further it will expand. From F we can go to I, correct, and ये वापस E भी जा सकता है, but अगर E जाएगा तो 253 वापस आएगा. Okay, and for I the value will be 0, correct. So the shortest path which we have got, or we can say the
जो रूट मिला है हमको टू गो टू गोल इज A to E, E to F and F to I. Okay, and the cost would be what? If we calculate the path cost, इसकी जो cost आएगी वो 140 plus 99 plus 211, okay, which is 450. ये इसका कॉस्ट आया है। और शॉर्टेस्ट जो पाथ मिली है टू गो रीच द आई, गोल नोड पहुंचने के लिए, ये गोल था, गोल नोड पहुंचने के लिए आपने ये पाथ डिराइव किया है। ओके, ए टू ई टू एफ टू आई, हर एक लेवल पे ये चेक करने वाला है कि कौन सा मिनिमम वैल्यू है, कौन सी ह्यूरिस्टिक मिनिमम है, और वो उसको ही सेलेक्ट करेगा एंड फर्दर एक्सपांड करेगा। ओके, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। Okay, so this was very simple. Now let's see the second searching technique is A star search technique. A star search technique is an informed search technique that finds the least cost optimal path from start node to the goal node. अब यहाँ पे ना आपको optimal path मिलने की ये गारंटी देता है। It combines the actual cost from the start node to the current node and estimated cost from the current node to the goal node. Means it will have a function fn equal to gn plus hn. Okay, where gn is the actual cost from the start node to the node n, whereas hn is the heuristic value and fn is the total cost, that is the combination of both, that is the addition. Correct. Now see, we have to start at the initial node and we have to set the value as 0. Then we have to calculate fn, insert the start node in a priority queue, that is an open list, and remove the node with the smallest fn. If the goal node we reaches, we have to stop and return the solution. We have to return the solution, otherwise it will further expand and calculate the gn, hn, fn for each child and insert or update the child node in the priority queue. Okay, and it will repeat this process until it reaches the goal. Let's see how it actually works. Let's see one example based on A star search. So this is the given graph here. This is our GN value and this is our heuristic value, which I have mentioned in red color. And for A star search, the simple way is to make two lists, that is open list and closed list. Open list में हम जो भी node विजिट कर रहे हैं या फिर एक्सप्लोर करने वाले हैं उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे और विजिटेड होने के बाद आप यहाँ लिखोगे. ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो एस इज अवर स्टार्ट नोड, सो विल राइट एस. Then from S we have a two possibility, either we can go to A or we can go to D. So A and D. Okay, now A has a function value will be what? Fn equal to A star का जो फॉर्मूला है वो Fn equal to Gn plus Hn. ओके, सो ये A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + 9 which is 12. करेक्ट. एंड whereas D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 5 which is 7. Okay, so the lowest value we will write first in the open list. The lowest node is D and the value of that fn function is 7, whereas A आया है और A की वैल्यू है 12. Okay, now since the value D जो D की फंक्शन वैल्यू मिली है हमको वो कम है, सो आप D को सिलेक्ट करोगे फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन और D यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे. ओके, सो यहाँ पे क्लोज लिस्ट में आपने D को ऐड कर दिया. So अब further D से you can go to B or you can go to E. Okay, so we'll write here D and B. Sorry, B and E. This is E. Okay, so E के पास जा रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो रही है? फंक्शन की वैल्यू 2 + 4 + 3 which is 6 और 3 9. ओके, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 + 1 + 4 which is 7. ओके, सो नाउ अगेन अब जो लोएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है? B की है. यस, तो अब यहाँ पे आप यू हैव टू राइट B 7 और E 9. ओके, ये ऐसा आपने लिख दिया. अब ये जो ओपन लिस्ट होती है ना, इसको आपको हमेशा अरेंज करके रखना होगा, दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो D A की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, सो A यहाँ से आप कट करेंगे और A को आप नीचे लिखेंगे. ओके, सो नाउ
द सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है, 7 को, बी को है. सो बी अब यहाँ से आप हटा देंगे और यू विल राइट इन द क्लोज लिस्ट. सो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आप एस से डी गए, डी से आप बी गए. क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू कम थी. ओके, अभी बी से यू हैव अ 2 पॉसिबिलिटी, इधर यू कैन गो टू ई और यू कैन गो टू सी. सो अब यहाँ से बी से आप सी जा सकते हो या तो आप ई जा सकते हो. अगर आप सी गए, सो व्हाट वुड बी द कॉस्ट, 2 + 1 + 2 + 2. ओके, 2 + 1 + 2 प्लस इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 2. वेरास ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 1 + 1 + 3. ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई, दिस इज 7 एंड दिस वन इज ऑल्सो 7. ओके, अब यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे भी 7 आया. तो मीन्स क्या, आप लेट सी, आई एम टेकिंग सी. ओके, यू कैन, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी आप ऐसे सिचुएशन पे ले सकते हो. ठीक है, तो अगर सपोज मैंने सी ले लिया, सी की वैल्यू 7 है और ई की वैल्यू भी 7 है. और ये जो वैल्यूज थे ग्रेटर वैल्यू, ये सारे नीचे ऐड करना होगा और इसको यहाँ से हटाना होगा. सो ई वुड बी, ई की वैल्यू 9 ऑलरेडी मेंशन थी, सो ई यहाँ पे 7 आ गया. सो नो नीड टू राइट अगेन. ए की वैल्यू कितनी है, ए इज स्टिल 12. ओके, सो अभी हमने यहाँ पे सी लिया है, सी को यहाँ से कट किया. ओके, सी को लिया, सी से आप यू कैन गो टू जी. ओके, जी, तो उसका कैलकुलेशन कितना हो रहा है, दिस इज 2 + 1 + 2 + 4 + 0 विच इज़ 9. ओके, तो मतलब आपने यहाँ पे जी आपको मिला, जिसकी वैल्यू मिली 9. ओके, फिर अब इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, ई की है. करेक्ट. सो जो लोएस्ट वैल्यू है वो आप फर्दर एक्सपांड करेंगे. ई से आप अभी यहाँ पे जी जाएंगे, जी गए. सो अभी यहाँ पे कितनी कॉस्ट हो रही है, दिस इज 2 + 1 + 1 + 3 + 0. नाउ दिस वैल्यू इज हाउ मच, 7. ओके, मतलब ये जो जी की वैल्यू थी यहाँ पे 9, इसको आप अपडेट कर दोगे टू बी 7. ओके, और ऑब्वियसली ए तो कभी विजिट ही नहीं हुआ क्योंकि ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल रही थी, फंक्शन की वैल्यू. सो जी की वैल्यू 7 यहाँ पे हमको मिल गई. और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपने यहाँ पे ई को एक्सपांड किया था, सो क्लोज लिस्ट पे लिखोगे और देन जी आप यहाँ पे लिख रहे हो, क्योंकि फाइनली आप रीड कर रहे हो. जब तक आप क्लोज लिस्ट में नहीं इंसर्ट करते तब तक मतलब क्या है कि यू हैव नॉट फाउंड गोल नोड. ओके, यहाँ पे आप लिखा है, आपने जी को इंसर्ट किया है ओपन लिस्ट में, लेकिन इसकी जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो उसको नहीं मिली. बट जब वो ई का रूट उसने फाइंड आउट किया तब उसको जाके ई की जी की वैल्यू उसको परफेक्ट मिली, दैट इज 7. ऑप्टिमल सोल्यूशन उसने गेट किया एंड देन फाइनली आपने उसको क्लोज लिस्ट में विजिट किया, दैट वी हैव फाउंड जी. ओके, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं थी, एक ही थी, एक का था, लेकिन एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. अंडरस्टूड. ऐसे ए स्टार सर्च काम करता है. नाउ लेट्स सी हाउ इट विल वर्क ऑन रोमन सिटी मैप. सी फॉर रोमन सिटी मैप कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो अरद लिखा आपने, अरद से यू हैव 2 पॉसिबिलिटी. यहाँ पे भी मैं लिस्ट बना देती हूँ क्योंकि लिस्ट से ना आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है. ओके, दिस इज ओपन लिस्ट and this is closed list. Okay, from Arad you can go to Timsora और Cebu और Zernet. ओके, अगर आप टिमसोरा जा रहे हो तो टिमसोरा की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, टिमसोरा इज 118 प्लस 329, वेयर Cebu इज हाउ मच, 140 प्लस उसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू 253 एंड जर्नेट की जो वैल्यू है दैट इज 75 प्लस 374. ओके, सो टिमसोरा की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 447, वेयर सिबू की वैल्यू आ रही है 393 एंड जर्नेट की वैल्यू आ रही है 449. सो विच वैल्यू इज द मिनिमम, सिबू. सो यू विल ऐड सिबू हियर विद द वैल्यू 393. ओके, और सिबू को ही आप सेलेक्ट करोगे फर्दर एक्सपांड करने के लिए. सो क्लोज लिस्ट में आप सिबू को ऐड कर दोगे और जो बाकी की जो हैं उसको भी आप अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख दो. टिमसोरा है विच इज़ 447 एंड जर्नीड है विच इज़ 449.
ओके, सो नाउ सिबू ना, आपने सिबू को सिलेक्ट किया, सिबू से यू कैन गो टू रिम्निका और फिगेरिस। ओके, अगर आप रिम्निका जा रहे हो तो कॉस्टिंग कितनी आ रही है, दिस इज़ 140 प्लस रिम्निका के लिए 80 प्लस उसका जो कॉस्टिंग है 193, वेराज फिगेरिस के लिए 140 प्लस 99 प्लस फिगेरिस का जो कॉस्ट है वो कितना है 178। ओके, सो रिम्निका का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ 413 एंड यहाँ पे फिगेरिस का आ रहा है 417। ओके, विच वैल्यू इज़ द लोएस्ट वन, ऑब्वियसली रिम्निका। सिपू को आपने पहले यहाँ से कट करके यहाँ पे क्लोज लिस्ट में डाल दिया था, तो अभी आप यहाँ पे रिम्निका को लिख दो और 413 लिखोगे। ओके, एंड जिस यहाँ ओपन लिस्ट में जिसकी वैल्यू कम है, जिस फंक्शन की वैल्यू कम मिल रही है, जिस नोड की एफ एन वैल्यू, ये वैल्यू को आप एफ एन वैल्यू कहते हैं, उसी को आप क्लोज लिस्ट में ऐड करोगे, उसी को आप फर्दर एक्सपांड करोगे। एंड देन फिगेरिस आ रहा है जिसका है 417। ओके, सो अब यहाँ पे रिम्निका की वैल्यू सबसे लोएस्ट है, सो ऑब्वियसली रिम्निका सेलेक्ट होगा और क्लोज लिस्ट में चला जाएगा, यहाँ से आप हटा दोगे। ओके, अब रिम्निका से आप कहाँ जा सकते हो, इधर यू कैन गो टू कार्निवो और प्रेस्टी। ओके, अगर आप कार्निवो जा रहे हो सो दिस इज़ 140 80 प्लस 146 प्लस कार्निवो का जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है दैट इज़ 160 एंड यहाँ प्रेस्टी की वैल्यू आ रही है 140 प्लस 80 प्लस 97 और प्लस प्रेस्टी की वैल्यू कितनी आ रही है 98। ओके, सो प्रेस्टी की जो कैलकुलेशन हो रही है दैट इज़ 415 एंड यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली ये बिगर नंबर होगा। ओके, 415 आ रहा है, तो आप यहाँ पे अभी जो लोएस्ट है उसको आप ऐड कर दोगे, प्रेस्टी ऐड किया आपने 415। नाउ यू कैन सी ये 415 जो है वो लोएस्ट है फ्रॉम दिस ग्रुप। ओके, ये जो क्लोज लिस्ट अपने ओपन लिस्ट बनाई है, प्रेस्टी की वैल्यू लोएस्ट है, सो प्रेस्टी अभी फर्दर एक्सपांड किया जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। सो प्रेस्टी से यू कैन डायरेक्टली गो टू बुकारेस्ट। सो यहाँ पे आप बुकारेस्ट लिखोगे और उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, दिस इज 140 80 प्लस 97 प्लस 101। सो ये आंसर आ रहा है अराउंड 418। ओके, एंड यहाँ पे अभी आप 418 लिखोगे और आपने यहाँ पे विजिट किया बिकॉज यू हैव रीच द गोल्ड। ओके, अगर आप फिगेरिस करोगे तो आपको जो बुकारेस्ट है उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 450 आएगी, विच वुड बी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, और ए स्टार जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन की गारंटी देता है, सो दैट्स वाई वो 450 वैल्यू बुकारेस्ट की वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा, इट विल सिलेक्ट 418 बिकॉज इट इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके, दिस इज हाउ ए स्टार सर्च एल्गोरिथम वर्क। Thanks for watching. Do like the video.